Hello guys, greetings in Jesus' mighty name. मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। God bless you all. आप सबको बरकत दे। So today I will be teaching you a very unique thing, you know. तो आज हम कुछ अलग सीखेंगे। So today the name of my teaching is See the Difference. आज जो टीचिंग है उसका नाम है फर्क को जानिए। All right. So the name of the teaching is See the Difference. फर्क को देखें। All right. So now this teaching will expose man's selfish nature and religion sitting in them. All right. आज का जो कलाम है वो बेनकाब करेगा इंसान का जो अपना मजहब है उसके अंदर जो उसकी खसलत में बैठा हुआ है। All right. And his selfishness, खुदगर्जी, the selfishness of a man, it will be exposed. और उसकी जो अपनी खुदगर्जी है वो बेनकाब होगी। And for those people that are humble and love God, this message will be a help to them so that they can repent and get right with God. मगर जो लोग खाकसार हैं उनके लिए मदद होगी कि वो खुदावन के साथ सही हो, तौबा करके सही हो खुदावन के साथ। But the people that are full of pride and they don't love God, this message will be very much offense to them. मगर जो खुदावन को प्यार नहीं करते, जो नहीं जानते खुदावन को, उनके लिए ये ठोकर का बाइस बनेगा। And the people that are full of pride, they will get offended. और जो फकर से भरे हुए हैं उनके लिए ठोकर का बाइस बनेगा। All right. So in fact they will get angry. बल्कि वो गुस्से में आ जाएंगे। So I want to tell you that how I got this teaching. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मैंने कैसे सीखा। How I received this teaching from the ये Lord. मुझे टीचिंग कैसे मिली खुदावन से। So I got this teaching by the Lord asking me a question. तो ये मुझे टीचिंग ऐसे मिली, खुदावन ने मुझसे सवाल पूछा। So the Lord asked me a question and that question actually shocked me. खुदावन ने मुझसे सवाल पूछा और मैं हैरान हो गया। And the Lord asked me a question that will a man share his wife with another man? खुदावन ने मुझसे बोला कि क्या कोई मर्द जो है वो अपनी बीवी किसी और के साथ शेयर करेगा। Now I said, of course not, Lord. मैंने बोला खुदावन बिल्कुल नहीं। Then the Lord Jesus said to me, तो खुदावन यीशु ने मुझसे बोला, then why do my people share my praises with another man? खुदावन ने बोला कि मेरे लोग मेरी प्रेजेस क्यों दूसरे के साथ शेयर करते हैं। All right, खुदा ने कहा कि मेरी तारीफ तुझे दे दे क्यों की जान रही है? Then why my glory is given to other things than me? खुदावन ने बोला कि मेरा जलाल क्यों दूसरी चीजों को दिया जाता है। You know, when you are saying that you cannot share your wife with another man, then why are you also not saying that I will not share the Lord's glory or His praise with another man or a thing? जब आप ये कह सकते हो कि मैं अपनी बीवी दूसरे के साथ शेयर नहीं करूंगा, तो आप खुदावन का जलाल या उसकी तारीफ जो है वो दूसरे के साथ क्यों शेयर करते हो? See, that is the thing that shocked me. तो ये वो चीज़ थी जिसने मुझे हैरान कर दिया। So, are you interested to listen? क्या आप इंटरेस्टेड हैं? You know, the Holy Spirit always shocks you. आपको पता है रूल को तो हमेशा आपको हैरान करता है। He always excites you. रूल को तो हमेशा आपको एक्साइट करेगा। But religion always bores you. मगर मजहब बोर करता है। And that's why people run from religion, from churches. They don't want to sit because it's so boring. इसलिए लोग मजहब से भागते हैं, वो चर्चेज में बैठना नहीं चाहते क्योंकि बोर हो रहे होते हैं। But kingdom is fascinating. It's so full of joy. मगर जो बादशाही है उसमें मजा है, उसमें न्यू चीजें हमें खुशी मिलती है। Okay, now let's study. So on the basis of this experience, I was able to, have this teaching which I'm about to share with you. तो इस तजर्बे से मुझे ये तालीम मिली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। So now I will share simple truths that will unfold great wickedness. मैं आपसे कुछ सच बताऊंगा जो विकेडनेस, शरारत को जाहिर करेगी। Alright, तो मैं कुछ आम सीधी बातें बताऊंगा, सादा सच्ची बातें, ठीक है ना? मगर वो इंसान के अंदर जो छुपी हुई बहुत बड़ी शरारत और मकारी या बदी है, या शैतान जो अंदर उसके छुप के बैठा हुआ है ना, जो उसका खुद ही आप है, वो उसको एक्सपोज करेगी, ठीक है? So let's learn. So first truth or first thing that I want to share with you is this. तो जो पहला सच, जो पहली चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है। And this will be more of a question. That question will bring more light to the selfish nature of a man. और ये ज्यादा सवाल होगा और ये सवाल जो है वो इंसान की खुदगर्जी को जाहिर करेगा। Exactly, and the evil in a man. और इंसान के अंदर जो evil छुपा हुआ है।
the evil, जो wickedness, जो बुराई उसके अंदर छुपी हुई है, exactly, that will be exposed. वो बेनकाब होगी. Now listen to me. अब सुने मेरी बात. Christians don't shy smoking or cussing or dating in the public. Come on. जो मसीही हैं वो शर्माते नहीं है सिगरेट पीने से, गालियां देने से या किसी औरत को डेट करने से. In the public. पब्लिकली मतलब लड़कियों को डेट करने से. So they don't shy doing that. वो शर्माते नहीं इन चीज़ों से. Then why do they shy praying and taking the name of Jesus in the public? तो वो क्यों शर्माते हैं दुआ करने से और यीशु मसीह का नाम लेने से पब्लिक में? Now this is my question. अब ये मेरा सवाल है आपसे. Now they are not shying smoking in the public. वो शर्माते नहीं है सिगरेट पीने से पब्लिक में. They are not shying displaying their relationship with their girlfriends in the public. वो शर्माते नहीं है अपने जो रिश्ता है एक औरत के साथ उसको बताने में पब्लिक में. You know, with a girlfriend. उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताते हुए शर्माते. You know, but they shy telling their relationship with Jesus in public. मगर वो शर्माते हैं अपना रिश्ता यीशु मसीह के साथ बताने में पब्लिक में. They hesitate praying in public. वो हिचकिचाते हैं दुआ करने पे. Now listen to me. They don't shy sinning in public, but they shy doing right thing in public. वो शर्माते नहीं हैं गुनाह करने में पब्लिक में, मगर वो शर्माते हैं सही चीज करने में. All right. So what is this all? This is the evil in a man. तो ये क्या है? ये वो बदकारी है, ये वो बुरी चीज है जो इंसान के अंदर है. So they are shying doing the right things in public, but they are not shying doing the evil things in public. Speak louder. तो वो सही चीज करने पे शर्मा रहे हैं मगर गलत चीज करने पे नहीं शर्मा रहे. All right. So what is all this? तो ये सब क्या है? Man's selfish nature. ये इंसान की खुदगर्जी है. You know, have you seen this happening? क्या आपने ये देखा है होते हुए? Okay. Now second thing that I want to highlight. अब जो दूसरी चीज मैं आप पे जाहिर करना चाह रहा हूँ वो ये है The religion in the church. जो मजहब है चर्चेज में. And the religion in a man. और जो मजहब इंसान के अंदर है. Now, people say don't bring the shoes in the church building. लोग कहते हैं कि चर्च के अंदर जूते मत लाओ. And don't take the shoes on the pulpit or on the stage. और पुलपिट के ऊपर जूते लेके ना चढ़ो. Have you heard this? क्या आपने ये सुना है? All right. Now this is right that people. Now what are people saying? The people are saying that this is not right that you are bringing dirty shoes in the church, but this is right that you can bring dirty heart full of fornication in the church. तो लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है कि आप गंदे जूते लेके चर्च में आओ, मगर ये चीज़ सही है कि आप बदकारी से भरा हुआ दिल लेके चर्च में आओ. You know, so I want to ask you that what is more dirty? You know, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. I want to ask you what is more dirty? The shoes that got dust on it, or the heart that got adultery in it? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या चीज़ ज़्यादा गंदी है? वो जूते जिस पे मट्टी लगी है या वो दिल जो ज़िनाकारी से भरा हुआ है? You tell me. आप मुझे बताएं. It's the heart, of course. Of course, it's the heart. Then tell me, why don't you stop, or why don't you, take out the things from the heart before you can come to the church? But you don't do that. You bring the dirty heart, but you keep the dirty shoes out. तो आप क्यों अपने दिल को साफ करके चर्च में नहीं आते हैं, मगर आप गंदा दिल लेके चर्च में आ जाते हैं और जूते बाहर रखते हैं? So what is all this? तो ये सब क्या है? Religion. मजहब. So the leader or the pastor of the church or the priest of the church will say, no, don't bring dirty shoes in. You have disrespected God. तो पास्टर आपसे बोलेगा कि नहीं जूते लेके चर्च में मत आओ, तुम खुदावन की बेहुरमती कर रहे हो. But he will never say clean your heart. मगर वो कभी नहीं कहेगा कि अपने दिल को साफ करो. In fact, the priest has the most dirty heart. बल्कि जो खादिम है उसका दिल सबसे गंदा होता है. The most of them. ज़्यादातर जो है. Not all of them, but most of them. सबकी बात नहीं कर रहे हैं मगर ज़्यादातर. You know, that's the fact. आपको पता ये सच है. So the thing is that you are saying that don't bring dirty shoes in because the temple of God is clean, but you're not understanding that you have a dirty heart and you are the real temple of God. तो आप ये कह रहे हैं कि आप गंदे जूते लेके चर्च में मत आओ क्योंकि खुदावन का जो हैकल है वो गंदी हो जाएगी, मगर आपको ये नहीं पता कि आप जो हो वो असल हैकल हो खुदावन की, तो इसलिए आपको अपना दिल साफ करना है. So you are
wanting to keep the building clean, not realizing that you are the real building of God. तो आप जो हो वो चर्च जो बिल्डिंग है उसको साफ रखना चाह रहे हो, मगर आपको ये नहीं पता कि आप असल बिल्डिंग हो, आप यू आर द चर्च ऑफ गॉड. Because keeping the church building clean is easy, but keeping your heart clean is very difficult. क्योंकि चर्च की बिल्डिंग साफ रखना आसान है, मगर अपने दिल को साफ रखना मुश्किल. That is why the priest or our religious people choose what is easy. They say keep the shoes out, but you can bring the dirty heart in. तो इसलिए जो खादिम है, जो प्रीस्ट है, वो आसान चीज़ लेता है. वो कहता है कि बिल्डिंग साफ रख लो, कर लो, दिल को भले गंदा रखो. You know? All right. Now they will give you a verse from the Bible, like Moses and Joshua was told to take their sandals off, you know. और वो आपको कलाम से आयत देंगे, जैसे मूसा और यशवा को बोला था कि वो जूते उतार दें. Now that is a revelation. That is another thing. अब वो एक मुकाशफा है, वो एक दूसरी चीज़ है. All right, but I won't get into the detail, but I'll share just a little about it. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताऊँगा. And that is in the old tradition, whenever a man of high honor or a high authority used to show up, to give them respect, they used to take the sandals off. That's it. अब ये पुराने इत्नामे में ये होता था कि जब भी कोई आला मकाम का कोई शख्स आता था जिसकी हाई ऑनर होती थी, तो उसकी प्रेजेंस में आप जूते उतार देते थे इज्जत के लिए. All right, so that's why they did that. तो इसलिए उन्होंने ये किया. All right, so I am not against that. You can, actually I'm not even interested that you should bring shoes in the church or you should keep the shoes out of the church. I'm not against that at all. मैं इसके खिलाफ नहीं है कि आप जूते अंदर लेके आओ या जूते बाहर उतारो. I'm not interested in all of मैं that. इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ इसमें. What I am focused on is that you bring a clean heart in the church. मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूँ वो ये है कि आप साफ दिल लेके चर्च में आओ. So what I'm against is that you're focusing on the shoes, but you're not focusing on the heart. आपका फोकस जो है वो जूतों पे जा रहा है, सिवा इसके बजाय कि दिल पे जाए. So you're trying to clean what is easy, but you're not cleaning what is difficult. तो आप जो आसान है उसको साफ रख रहे हो, जो मुश्किल है उसको नहीं कर रहे. You're cleaning what is not so much important, but the thing that is more important, that is your heart, you're not even, focusing or giving a try, your best try for that. तो आप उस पर फोकस कर रहे हो जो कम इम्पोर्टेंट है, मगर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका दिल, उस पर आप नहीं फोकस कर रहे. So now that's the religion. तो ये वो मज़हब है. So the religion will aim to focus on what is not important, and will aim to focus on what is not important, and will lose its focus or attention on things that are really, really important. तो जो मज़हब है वो फोकस करेगा उन चीज़ों पे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो खो देता है उस अपना फोकस उन चीज़ों से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Now that is what religious does. और ये मज़हब करता है. So now the third example that I want to share is अब this. जो तीसरी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है. So now when people dance in marriages or parties or on secular music, that is perfectly fine, लोग जो है वो शादी ब्याह पे नाचते हैं और दुनियावी गानों पे नाचते हैं, तो सही है. The dance on parties is fine. जब वो शादियों पे नाचते हैं तो वो सही है. But when God's people start to dance on worship song in the church, religious folks says, look at that, how they are dancing. और जब खुदावन के लोग जो है चर्च में वर्शिप सॉन्ग्स पे डांस कर रहे होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि देखो ये क्या कर रहे हैं. They have a problem with dancing in church. उनको मसला है चर्च में डांस करने से. So they have a problem for dancing in church for God, but they don't have a problem for dancing for the world and for the devil. उनको मसला नहीं है दुनियावी गानों पे खुदावन दुनिया के लिए नाचना, मगर उनको मसला है खुदावन के लिए चर्च में नाचना. They have no problem that if you dance for the devil in the world, but they will have a problem that why you are dancing for the Lord in the church. उनको मसला नहीं होगा कि आप शैतान के लिए नाचो दुनियावी गानों पे, उनको मसला होगा अगर आप खुदावन के लिए नाचो. So I have a simple one question. तो मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है छोटा सा. If Jesus was before you, कि अगर खुदावन यीशु आपके सामने होता, will you sing the secular songs that you sing? क्या आप दुनियावी गाने गाते जो आप गाते हो? If Jesus was sitting in front of you, कि अगर आप यीशु मसीह आपके सामने बैठा होता, will you sing those? क्या आप वो गाने गाते? Will you dance on those songs if Jesus was sitting before you? क्या आप उन दुनियावी गानों पे नाचते जब अगर खुदावन यीशु आपके सामने होता? My third question is that, are those secular worldly songs, are they played in heaven? और मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या वो दुनियावी गाने जन्नत में आसमान पे गाए जाते हैं? So now, do you think the people that are singing and dancing over those songs will be allowed in heaven? तो क्या आपको लगता है कि जो लोग दुनियावी गानों पे नाच रहे हैं और गा रहे हैं वो अलाउ किए जाएंगे हेवन? You tell me that.
आप मुझे बताओ। If Jesus is not singing those songs and in heaven they are not sung, nobody is dancing for them in heaven, how will those people will get in heaven and Jesus will allow them, those who are doing it on those songs? तो जो लोग दुनियावी गानों पे नाच रहे हैं और वो खुदावन के लिए नहीं नाच रहे, तो खुदावन यीशु कैसे उनको अलाउ करेगा अपनी बात? Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So yes, see the difference. That's why the name of the message is See the Difference. तो इसलिए फर्क जाने, तभी मैसेज का नाम है सी द फर्क जाने। All right. Kingdom people live a different kind of lifestyle. जो बादशाही के लोग हैं उनका लाइफस्टाइल अलग होता है। I'm doing what Apostle Paul did in his epistles. मैं वही कर रहा हूँ जो पौलुस ने अपने खतों में बताया। You know, I am giving you the standards for the kingdom. मैं आपको बादशाही के कानून सिखा रहा हूँ। I'm showing you the difference how the people of the kingdom live. मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बादशाही के लोग कैसे अलग किए जाते हैं। I'm teaching you the principles of the kingdom. मैं कानून सिखा रहा हूँ आपको बादशाही के। We don't blend with the world. We live apart from the world. हम दुनिया में नहीं घुल मिलते, हम दुनिया से अलग जीते हैं। We live in the world, but we don't walk like the world. हम दुनिया में रहते हैं मगर हम दुनिया की तरह नहीं चलते। That's why our relatives can dance on the marriages and the parties, but we don't dance. तो इसलिए आपके रिश्तेदार जो है वो दुनियावी गानों पे नाच सकते हैं मगर आप। So we only dance for Jesus. तो इसलिए हम सिर्फ यीशु मसीह के लिए नाचते हैं। Do you know why? क्या आपको पता है क्यों? Now I will ask you again a simple question. फिर से मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। Can anyone's wife will dance with another man and enjoy the dance? क्या एक किसी की बीवी जो है वो दूसरे मर्द के साथ नाचे और उसको मजा है? And the husband will allow that? और एक मर्द जो है वो अलाउ करे उसे? Is that possible? क्या ये मुमकिन है? Is this good? क्या ये अच्छा है? You know that's a common sense. Then why you are saying that that's a common sense? कि किसी और की बीवी किसी और मर्द के साथ नहीं नाचेगी और ना वो उसका शौहर उसको अलाउ करेगा, तो फिर आप ये क्यों नहीं समझते कि आप शादी ब्याह पे जो गानों पे नाचते हो आप शैतान के लिए नाच रहे हो, यीशु पसंद नहीं करेगा और अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो भी तो आपका शौहर है ना। फिर That's what I said, that any husband will not allow his wife to dance with another man. Likewise, Jesus will not allow his bride to dance with the devil on the secular worldly songs. Yes, it makes the difference. Come on. तो ये फर्क पैदा करता है। Now the fourth thing that I want to discuss is this. तो चौथी चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ that people, especially even ladies, go to abroad to study, to find a job, and the parents or the elders of the family have this faith that God will protect, send the children to the abroad to earn money and to study, etc. Come on. तो जो लोग हैं, जो औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ने या जॉब नौकरी करने जा सकते हैं, और जो माँ बाप हैं वो ये अश्योरिटी देते हैं कि खुदावन जो है वो उनकी प्रोटेक्शन करेगा ताकि बच्चे जो है वो वहाँ से पैसा भेज सकें। All right. So they believe that the children are going abroad, God will protect them, and they pray. और वो ये मानते हैं कि वो बाहर जा रहे हैं तो खुदावन हिफाजत करेगा, और वो दुआ भी करते हैं इसके लिए। You know, but when the same children says that we are going on a ministry, we are going to church, we are going out to do something for the Lord, now parents doubt that the Lord will protect them. और यही बच्चे जब वो बोलते हैं कि हम बाहर खिदमत करने जा रहे हैं या हम खुदावन के काम से बाहर जा रहे हैं, तो वही माँ बाप जो है बच्चों पे शक करते हैं कि क्या खुदावन बचाएगा। Now they have faith that the Lord will protect them when they want to do the work for themselves or to earn money for their parents. They believe that God will protect them. तो उनका यही ईमान है कि जब वो अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को बाहर भेजते हैं, जब तक के पैसा है, तो तब उनका ईमान है कि वो खुदावन बचाएगा। You know, but they don't believe when they're going for the Lord himself. In that condition, the Lord will not protect. मगर वो उनका यहाँ पे ईमान खत्म हो जाता है कि जब खुदावन के काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तब वो खुदावन नहीं बचाएगा। मैं उर्दू में बोलना चाहूंगा, जब माँ बाप के लिए जा रहे हैं, उनको पैसा भेजना है, तब उनका ईमान है कि खुदा बचाएगा, बेटा जा। जब लड़कियां बाहर जा रही हैं क्योंकि उन्होंने कमा के भेजना है या पढ़ना है, बाहर अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, तब खुदावन हिफाजत भी करेगा, तब पीछे दुआएं भी चलेंगी,
तब ईमान भी है कि चल गोरे से शादी हो जाएगी, वहां पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मगर अगर वही लड़की मुल्क से बाहर भी नहीं, अपने ही मुल्क में, दूसरे शहर भी नहीं, अपने ही शहर में साथ वाले चर्च में रात के टाइम जा रही है, बोलेंगे ना पता नहीं कितने हालात खराब है। अच्छा, जब अमेरिका जा रही थी तब हालात खराब नहीं थे, वहां पे कोई गोरा क्या कर देगा, इधर के हालात खराब हो गए। यानी जब अपना मतलब है तब ईमान भी है, दुआ भी है, शुक्रगुजारी भी है। जब खुदा का मतलब आ गया कि खुदा का फायदा है, तब ईमान भी नहीं है। ये क्या है? ये सारी की चीजें खुदगर्जी है, सेल्फिश। ऐसे माँ बाप के ऊपर अफसोस, ऐसे माँ बाप पे अफसोस। और ये मेरी क्लिप काट के उन माँ बाप को भेजो और दिखाओ और बताओ उन माँ बाप को कि आपकी कितनी घटिया सोच है। और माँ बाप को बताओ, मामा पापा इज्जत और एहतराम के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी घटिया तरीन नीच सोच है। बताएं उनको, ये आप उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे, उनको आप जगा रहे और बचा रहे हैं कि खुदावंद के लिए, आप खुदावंद के जलाल के कामों के लिए आपका ईमान कम है, कि आपको डर लग रहा है कि खुदा हिफाजत नहीं करेगा, आपको डर लग रहा है कि आपके साथ कुछ हो जाएगा। मगर जब मैं अपने काम के लिए जा रहा हूं जिसमें आपके ना सिर्फ जेबों में बल्कि आपके मुंह में पैसे जाने हैं, ठीक है ना, मुंह में मजे मजे पैसों से खाने ही जाएंगे ना, तब आपका पूरा ईमान है कि खुदा हिफाजत करेगा। वाई सर? बातें कड़वी हैं, बातें बुरी लग रही हैं, अच्छा लग रही हैं क्योंकि आप मजहबी गुंडे हो और आपका बाप अबलीस आप में बैठा हुआ है, इसलिए बुरी लग रही हैं। अगर मेरा बाप आप में बैठा होता ना, जिसका नाम यहोवा है, तो आप बोलते जा बेटा जा, अगर जान भी देनी पड़े ना अपने यीशु के लिए तो दे देना भाई। डिड यू अंडरस्टैंड? लड़की को ड्यूटी भेजते हुए डर नहीं लगता, 2 बसें चेंज करके चिंची पे जाएगी, हिफाजत करेगा खुदा। मगर जब चढ़ जा रही है, खोरे पता नहीं की हो जाए रास्ते में, हालात बड़े खराब ने। अच्छा, जब वहां से 30,000 40,000 आने तब हालात खराब नहीं है, तब खुदा हिफाजत कर लेगा, तब भैयू छोड़ आएगा। जब चर्च तक जाना है, जब खुदावन के ही घर जा रहे हैं और खुदावन ने हिफाजत करनी है, तब खोरे हालात बड़े खराब ने। हालात नहीं खराब, आपका दिमाग खराब है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरी इस बात से? तो इस वजह से एडिटर्स ये क्लिप काटें और भेजें इन लोगों को, ताकि इनका मजहब एक्सपोज हो। अपनी बारी पे सब कुछ ठीक है, खुदावन की बारी पे हाय पता नहीं ये क्या हो जाए, हाय पता नहीं वो हो जाए। मेरा गुस्सा जायज है, यीशु मसीह का गुस्सा जायज था जब उसने उनको कोड़े मार के हैकल से निकाला था, उसका गुस्सा जायज था। और जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये मुकद्दस और ये पाक है, ये पाक गुस्सा है, क्योंकि तुम मेरे खुदा को और उसके जलाल को लूटते हो और उसी को लूट के कहते सानू दे, उसके जलाल के लिए नहीं, अपने मकसद के लिए। So what I just said was that I just want to translate in English that you can send your daughter to earn some money in abroad or to a far distance, city or job or whatsoever, and you believe God will protect because she is going and you pray. But when that same daughter in the night had to come to church, now you doubt that God will protect or not, and you stop that lady from coming to the church. Why? Because when the money is coming, you believe the Lord will protect. When the money is not coming in your pocket or in your mouth, you don't believe that the Lord will protect. When she is going, in fact, for the Lord himself. So you should be, now this is the kind of cheap mentality that our people have, religious mindset. So we must have a heart that would say, go son, go my daughter, and even if you have to lay your life and die for the sake of Jesus Christ, die in the way. You must have that kind of a mindset. Understood? Yes or not? Yes. Okay. Now another point is that, come on Anand. अब एक और चीज जो है वो ये है, so you go to the church, now people go to the church to get married or find some, rishta, some good boy or a girl over there. लोग जो है या आप लोग जाते हैं चर्चेस ताकि आपको रिश्ता मिले, To find a good girl or to find a good तो लोग handsome जो है man. अच्छा बंदा अच्छी बंदी देखने जाते हैं। Now that's the kind of trend that is going on. अब ये ट्रेंड बना हुआ है आज चर्चेस में। But they don't go to church because Christ is your husband. मगर वो इसलिए नहीं जाते कि मसीह उनका हस्बैंड है। Do you see the difference? तो आप देख रहे हैं फर्क को? That is why the name of this message is See the Difference. इसलिए इस कलाम का मतलब जो मैसेज है वो है फर्क को जानिए। So the people are going to church to search for the husband.
तो लोग जो है वो चर्चेस जा रहे हैं ताकि वो मियाँ ढूंढे. All right, but they are not going for the church because their husband Christ himself is there. मगर वो इसलिए नहीं जा रहे कि उनका हस्बैंड मसीह यीशु जो है वो वहाँ पे है. So they don't care for their eternal husband. They just want the fleshly husband that will die. तो उनको कोई परवाह नहीं है वो हकीकी हस्बैंड है जो इटर्नल है मसीह यीशु. उनको उसकी परवाह है जो उनका फ्लैशली हस्बैंड है जो कि मर जाएगा. All right. Now the fifth thing that I want to share. अब जो पांचवी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये है. So now the musicians at the church come to play their music and show their talent and skill. They are coming to show how talented they are and how well they can play. Come on. अब जो म्यूजिशियंस मौसीकार हैं वो चर्च इसलिए आते हैं कि वो अपना टैलेंट दिखाएं. वो जो उनका स्किल है, कोई गिटार बजा सकता है, कोई ड्रम, वो अपना स्किल दिखाना चाहते हैं. वो इसलिए नहीं आते कि वो खुदावन की प्रस्तुति करें. So now they are not coming to the church to worship Jesus. They are just coming to the church to display how well they can play an instrument. वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो खुदावन की प्रस्तुति करें. वो इसलिए आते हैं कि हाँ कितना अच्छा वो बचा सकते हैं. They are not coming to church to please the Lord with their instrument. Come on. अब वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो खुदावन को खुश करें अपने इंस्ट्रूमेंट से. They are coming in church to impress the girls with their instruments. वो इसलिए आ रहे हैं कि वो लड़कियों को खुश करें अपने इंस्ट्रूमेंट से. Or the public. या लोगों को. You know, not all of them, but majority of musicians are like that. सारे नहीं मगर ज्यादातर जो म्यूजिशियंस है वो ऐसे हैं. Now, have you seen these things happening? क्या आपने ये देखा चर्चेस में होते हुए? Yes. So now that's why the name of the title is See the Difference. तो इसीलिए कलाम का नाम है फर्क को जानिए. All right. So that's how you are going to see the difference between a religious person and a true spirit-filled person. तो ऐसे आप जानेंगे फर्क एक मजहबी इंसान में और जो एक रूह से भरा हुआ इंसान है. So now the musicians are not coming to the church to impress God. They're coming to the church to impress women, girls. तो जो म्यूजिशियंस हैं वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो खुदावन को खुश करें. वो इसलिए आ रहे हैं कि वो लड़कियों को खुश करें. So they are not coming to the church so that God can hear their sound of music. वो इसलिए नहीं आ रहे कि खुदावन तक उनकी आवाज जाए, खुदावन तक उनका साउंड जाए. So they are coming to the church so that their music can be heard by the people and they can applaud them. तो वो इसलिए आ रहे हैं कि उनका जो साउंड है वो लोगों तक पहुंचे और लोग तालियां बजाएं. Is this a reality? क्या ये सच्चाई नहीं है? And that is why I rarely call musicians to my church. तो इसीलिए मैं बहुत कम म्यूजिशियंस को बुलाता हूँ अपने यहाँ. But this is my joy to do this. और इसमें मेरी खुशी है That I don't call musicians to the church. कि मैं म्यूजिशियंस को नहीं बुलाता चर्च. Because I know what they will do. क्योंकि मुझे पता है वो आके क्या करेंगे. And I love kicking out musicians from the church. I just love doing this. और मुझे मजा आता है उनको चर्च से बाहर निकालना. बोले लात मार के निकाल. लात मार के बाहर निकालना. You know, I love doing this. मुझे मजा आता है. You know why? Because I love kicking out flesh and religion out of the house of God. मुझे मजा आता है लात मार के बाहर निकालने से. मजहब और जो जिस्म है उसको बाहर चर्च से बाहर निकालना. And keep the house of God pure and holy. और खुदावन के घर को मैं पाक और खालिस रख सकूं. Come on. आप समझे मुझे क्यों मजा आता है? ताकि मैं जिस्म को और मजहब को बाहर निकालूं, ताकि खुदा की हैकल, खुदा का घर थोड़े हो. म्यूजिक नहीं है, कोई भी नहीं. मेरी प्रायोरिटी म्यूजिक नहीं है, मेरी प्रायोरिटी होलीनेस है. मेरी प्रायोरिटी जो है ना तबला बाजा हारमोनियम में, मेरी प्रायोरिटी खालिस होना, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे बाप को क्या पसंद है. You know? Now I want to share one revelation with you. अब मैं एक मुकाशवा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. Regarding the music. म्यूजिक से रिलेटेड मुकाशवा है. I was in a prayer and the Lord spoke to me something. मैं दुआ में था और खुदावन ने मुझसे बोला. Do you want to hear that? आप जानना चाहते हैं क्या? Regarding the music and musicians. म्यूजिक और म्यूजिशियन से रिलेटेड खुदावन ने क्या बोला? And the Lord spoke to me and said, Sharon, do you think that I need a guitar for worship? खुदावन ने मुझसे बोला कि शारून तुझे क्या लगता है कि मुझे गिटार चाहिए वर्शिप कराने के लिए? And am I dependent upon instrument to receive worship and glory? और खुदावन ने बोला क्या मैं तुझे लगता है डिपेंडेंट हूँ इंस्ट्रूमेंट्स पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे ग्लोरी रिसीव करने के लिए? And I said, no, Lord. So I said, then Lord, how? Because that's how it's going on in the church. तो मैंने बोला नहीं खुदावन,
मगर खुदावन कैसे? क्योंकि यही सब चर्च में चलता आ रहा है। And he said that my worship, my true worship, the Lord said, is not done by musical instruments. और खुदावन ने बोला मेरी सच्ची प्रस्तिश जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं होती। My true worship is done by holiness. मेरी सच्ची प्रस्तिश खुदावन ने बोला होती है पाकीज़गी से। And then the Lord gave me a revelation for musicians. और फिर खुदावन ने मुझे मुकाशफा दिया म्यूजिशियंस पे। And the Lord said, a true musician is not known by me how well a good music that he can play. एक अच्छा मौसीकार जो है वो मैं उसको इसलिए नहीं जानता कि वो कितना अच्छा बजा सकते हैं। And he said that I count musician how well he is or how good musician he is according to how much holy life he lives. एक अच्छा म्यूजिशियन जो है वो मैं उसको इसलिए ऐसा जानता हूँ कि वो कितना अच्छा म्यूजिशियन है जितना पाकीज़गी में वो चलता है। So the Lord taught me the criteria for worship is not music, my son. खुदावन ने मुझे बताया कि प्रस्तिश का क्राइटेरिया जो है वो म्यूजिक नहीं है। Ooh, the Lord taught. You were there with me, Salman. Yeah. We were in prayer. The Lord said to me, the criteria for Sister Zarish, worship is not music. तो खुदावन ने बोला प्रस्तिश का क्राइटेरिया जो है वो म्यूजिक नहीं है, It is holiness. वो पाकीज़गी है। And if you are worshiping me in the beauty of holiness, like the scripture says, Anan, और खुदावन ने बोला कि अगर तुम पाकीज़गी की खूबसूरती में मेरी प्रस्तिश करते हो, now that is like an aroma, beautiful fragrance of aroma coming to my nostrils. तो ये वो अच्छी खुशबू की तरह है जो मेरी नस्लों में आती है। You know, it has nothing to do with music. तो इसका कोई भी लेना देना म्यूजिक से नहीं है। And the Lord revealed to me that living a heart that is holy and a pure is, when he cries out to me, that is the most beautiful sound that I can ever hear. खुदावन ने बोला कि एक दिल जब मेरे लिए सामने चिल्लाता है, रोता है, तो वो अच्छी आवाज़ मेरी कानों तक आती है। ये ना खुदा ने कहा जो एक दिल खालिस है, मेरे साथ मुखलिस है, सिंसियर है, मेरे से वाकई में प्यार करता है और प्योर और होली है, जब उस दिल में से मेरे लिए आ निकलती है ना और रोना निकलता है, वो आवाज़ किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा खूबसूरत होती है। Do you understand? So when you walk with the Lord, you really know what He likes. तो जब आप खुदावन के साथ चलते हो आपको पता है वो उसको क्या पसंद है। So that's why now I want to ask you, have you seen these three things musicians do at church? And by that you can know how true they are. अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये तीन चीज़ें आपने देखी हैं चर्च में म्यूजिशियंस के अंदर, और उससे आपको पता चलेगा वो कैसे हैं। The first thing, have you seen tears in the eyes of musician? पहली चीज़, क्या आपने कभी उनकी आंखों में आंसू देखे? Now the people are laughing. Have you seen tears in the eyes of musician? Those guitars, tabla, and you know the drum set and all of that. Have you seen tears in their eyes? क्या आपने कभी गिटार या तबले या ड्रम वाले की आंखों में आंसू देखे? No. Secondly, have you seen them on their knees when people are praying? क्या कभी आपने उनको अपने घुटनों के बल देखा जब लोग दुआ कर रहे थे? And third thing, और तीसरी चीज, if you know them personally, do they really have a prayer life? Come on, answer me. अगर आप उनको पर्सनली जानते हैं कि क्या उनकी दुआ को जिंदगी है? That is why they are not musicians. तो इसलिए वो मौसीकार नहीं है, They are jokers. वो जोकर्स है, They are actors. वो एक्टर्स है। You know, they are not true musicians of the Lord. I'm talking about of the Lord. They could be of the world, but they are not of the Lord. वो सच्चे खुदावन के मौसीकार नहीं है, दुनिया के हो सकते हैं मगर खुदावन के नहीं। Because a true musician or a worshipper of the Lord, क्योंकि एक सच्चा खुदावन का जो परस्तार है, he will be known for his prayer life. वो अपनी दुआ को जिंदगी से पहचाना जाएगा। He will weep when he will worship the Lord. वो रोएगा जब वो खुदावन की प्रस्तुति करेगा। And you will see the tears in his eyes. और आप उनकी आंखों में आंसू देखोगे। And you will see when there is a strong anointing of worship, और आप देखोगे कि गहरा मस्सा आएगा, of the worship, प्रस्तुति के लिए गहरा मस्सा आएगा। he will go on his knees. और वो अपने घुटनों के बल हो जाएगा। Because he is broken in worship. क्योंकि वो टूट गया है प्रस्तुति में। But these musicians care not about they break in worship.
मगर ये म्यूजिशियंस जो है वो टूटे हुए नहीं होते प्रोसेस में। ये परवाह नहीं करते कि प्रोसेस में टूटे हैं। ऑलराइट, दे केयर दैट देयर गिटार स्ट्रिंग्स वोंट ब्रेक इन वर्शिप। और ये परवाह करते हैं कि उनकी गिटार की स्ट्रिंग ना टूट जाए प्रोसेस में। नाउ डू यू सी द डिफरेंस? क्या आप फर्क देख रहे हैं? That's why the name of this teaching is See the तो Difference. इसीलिए कलाम का नाम है फर्क को जानिए। You know, from our country there was a guy named Ernest Mall. तो आपको पता है कि हमारी मुल्क में एक परस्तार थे अर्नेस्ट मल। Now he was a worshipper. अब वो एक सच्चा परस्तार था, He was a musician. वो एक म्यूजिशियन था। You will see tears in his eyes. आपको उनकी आंखों में आंसू दिखेंगे, You will see prayer life in his life. आपको उनकी दुआ को जिंदगी दिखेगी, And you will see him on knees. और आपको वो घुटनों के बल दिखेंगे। And if from the West I talk about, और अगर मैं बाहर से बात करूं, you will see Terry, Mr. Terry McElman. आप देखेंगे टेरी मैकेलमैन। You know, the kind of worship, you even when Benny Hinn worship, you're going to see tears in his eyes. हालांकि जब बेनी हिन भी वर्शिप करता है तो आप देखोगे उसकी आंखों में आंसू। And any true worshipper of God, it's impossible to worship God without tears कोई भी सच्चा परस्तार होगा वो नामुमकिन है कि उसकी आंखों में आंसू ना आए when he's worshiping जब God. वो प्रस्तिश कर रहा है खुदा की। All right. Now the sixth point that I want to share is this. अब जो छठा पॉइंट है मैं आप जो शेयर करना चाहता हूँ, Now people will pay heavy money to call gospel singers on their, events or crusades or conventions or whatever. Come on. तो लोग जो है बहुत भारी रकम देते हैं और गॉस्पल सिंगर्स को बुलाते हैं जब कोई क्रूसेड हो रहा होता है। Now they're willing to pay a very heavy price of money for gospel singers. और वो तैयार होते हैं कि वो अच्छी रकम देने के लिए तैयार होते हैं जो गॉस्पल सिंगर्स आ रहे हैं उनको, But they are not willing to pay a heavy price of prayer for the anointing. मगर वो भारी कीमत दुआ की नहीं गुजारना चाहते क्रूसेड के लिए। यानी वो लाखों रुपए लगा देंगे, दे देंगे कि भाई उस फलाने गॉस्पल सिंगर को लगा लो, मगर वो कभी भी इसके लिए भारी कीमत लगा देंगे, मगर दुआ की भारी कीमत कभी नहीं लगाएंगे कि मसा आए। गॉस्पल सिंगर आए ठीक है, मसा आए ना आए खैर है। गॉस्पल सिंगर को बुलाने के लिए पैसे लगते हैं, मगर मस्से को बुलाने के लिए दुआ और रोजा लगता है। तो वो दुआ रोजे की कीमत कभी नहीं देंगे, वो गॉस्पल सिंगर को बुलाने की कीमत दे देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट, तो अब सातवां और आखिरी पॉइंट ये है कि द रिलीजियस पीपल और द पीपल दैट आर स्टिल इन द फ्लैश, जो मजहबी लोग हैं या जो जिस्म में रहते हैं लोग, they still care about what relatives will say, but they don't fear what Jesus will say. उनको ये फर्क पड़ता है कि हाय रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मगर उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि यीशु क्या बोलेगा। यानी कि उनको इस चीज़ की परवाह है कि हमारे रिश्तेदार हमें ताने माने देंगे, उनको इस चीज़ की परवाह नहीं कि यीशु मसीह हमसे नाराज़ हो जाएगा। उनको इस चीज़ की परवाह है कि रिश्तेदार हमारे खिलाफ हो जाएंगे, उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि खुदा हमारे खिलाफ हो जाएगा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि हाय अगर उन्होंने हमें जो दावत दी है वो पार्टी की इवेंट की शादी पे अगर हम ना गए तो वो तो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, मगर उनको ये बात परवाह नहीं है कि हमारे रोज़े चल रहे हैं, अगर मैं वो रोज़ा तोड़ा तो खुदा नाराज़ हो जाएगा। सो दैट्स हाउ पीपल आर रिलीजियस। तो इस तरह लोग मजहबी होते हैं। सो पीपल केयर अबाउट व्हाट relatives will say, that they don't care what Jesus will say. तो लोगों को इससे फर्क पड़ता है कि हाय रिश्तेदार क्या बोलेंगे, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि यीशु क्या बोलेगा। So they care that the relatives will get angry at them. They don't care that God will get angry at them. उनको इससे फर्क पड़ता है कि रिश्तेदार गुस्से हो जाएंगे उनसे, मगर उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि खुदा उनसे गुस्सा हो जाएगा। They fear the harm that relatives can do to them. They don't fear what harm God can bring to them. वो इससे डरते हैं कि जो नुकसान रिश्तेदार उन्हें पहुंचा सकते हैं, वो इससे नहीं डरते जो नुकसान खुदावन उन्हें पहुंचा सकते हैं। Are you understanding? But a true man, a righteous man, a true spirit-filled man is the person who cares for nothing but Jesus. मगर एक सच्चा रास्तबाज और रूह से भरा हुआ इंसान जो है वो केयर करता है कि यीशु क्या बोल रहे हैं। And he cares for the opinions of none. वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोले। He just cares what Jesus wants him to do. उसको इससे फर्क पड़ता है कि खुदावन यीशु क्या चाहता है कि वो करे। Now the last thing that I want to say is this. अब आखिरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये, The day you become selfish for Jesus, जब आप मसीह यीशु के लिए खुदगर्ज हो जाएं, the day you become selfish for Jesus, जिस दिन आप मसीह यीशु के लिए खुदगर्ज हो जाएं, that is the day you have become a true Christian. वही वो दिन है जब आप सच्चे मसीह बन गए। Cut the video.